أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بسم الله الرحمن الرحيم ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوان بندہ نچیز خادم مجاہدین ختم نبوت عبید اللہ لطیف آج آپ کے سامنے اپنی نئی ویڈیو لے کر کے حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے امت مرزائیہ کے مہان مربی جناب ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، جو کہ اپنے یوٹیوب چینل ریئل اسلام پر بیٹھ کر کے لائیو سٹریمنگ کیا کرتے ہیں دیگر مربیان سمیت، اور اس چینل پر لائیو سٹریمنگ میں کس طریقے سے ڈاکٹر یحییٰ صاحب بڑکے مارتے رہے جب مجاہدین ختم نبوت میدان میں آئے اور انہوں نے مناظرے کا چیلنج دیا، لائیو سٹریم پر مناظرے کا چیلنج، تو ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے اپنے دیگر ساتھی مربیان خصوصاً جری اللہ صاحب، مبارک احمد صاحب اور اعظم سیفی صاحب، جو کہ ان کے سلسلہ قادیانیہ کے معلم ہیں، آفیشیل معلم، ان سمیت کس طریقے سے راہ فرار اختیار کیا مناظرے سے۔ تو آئیے ہم آج آپ کے سامنے ڈاکٹر محمد یحییٰ امت مرزائیہ کے مہان مربی اور ان کے دیگر مربیان جری اللہ، مبارک احمد اور اعظم سیفی صاحب کا لائیو مناظرے سے شرمناک فرار پیش کرتے ہیں۔ توجہ سے سماعت فرمائیے، لیکن اس سے پہلے یاد رکھیے کہ ہمارے یوٹیوب چینل RQ یوٹیوب TV کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور بیل آئیکن ضرور دبا لیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا میسج آپ تک پہنچ سکے۔ یہ عرض کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ نشان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو ظاہر ہوا، اس کا ہمارے آباء و اجداد نے یہ نشان دیکھا اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی حیات عیسیٰ کے عقیدہ کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تو مولوی اس طرح سے بھاگ جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں جیسے وہ ایک جانور کے بارے میں کہتے ہیں اس کے سر سے سینگ۔ ٹھیک ہے جی، آج بھی وہ بڑے بڑے مولوی حضرات جو کہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے پروگرام کے جوابات دینے ہیں، ہمارے پروگرام کے بارے میں انہوں نے ہماری سٹریم کا جواب دینا ہے، اور جناب آپ جو وہاں جا کر جواب دیں گے تو ادھر آئیں۔ حیات عیسیٰ کا عقیدہ آپ کا عقیدہ ہے، کیا آپ کو ایک ذرا بھی میں اب پیار سے کہہ رہا ہوں، آپ کو ایک ذرا حیا نہیں آتی؟ پیارے بھائیو، عقیدہ آپ کا ہے، اپنے عقیدے کو آ کر ثابت کریں۔ لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو بڑے بڑے نام بنتے ہیں ان میں سے وہ سب غائب ہیں، اور انشاءاللہ غائب ہی رہیں گے۔ ان کو بھی پتا ہے کہ ادھر جو ہیں وہ بڑے بڑے علمی طور پر ایٹم بم موجود ہیں، جو کہ اگر وہ آئیں گے تو وہ ایٹم بم جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کلام کی روشنی میں اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بتلایا اور پھر قرآن پاک کی آیات کی طرف رہنمائی فرمائی، وہ آیات جو میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری، اور جن آیات کو پیش کر کے ان میں سے بعض آیات کو صحابہ کرام نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثلا تمام صحابہ کو یہ سبق دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے موجود جو رسول ہیں، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے آئے تھے وہ فوت ہو چکے ہیں۔ انہی آیات کی بدولت اور انہی آیات کی وجہ سے یہ لوگ دوڑتے ہیں ہمارے سے، الحمدللہ۔ آپ نے آپ دیکھ لیں، ان میں سے ایک بندہ بھی نہیں آیا، حالانکہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کامنٹ باکس میں مولوی راشد ابو مشتبہ راشد صاحب بھی لگے ہوئے تھے، ساجد الوی صاحب بھی لگے ہوئے تھے، مجھے اب یہ نہیں پتا کہ اب وہاں پہ موجود ہیں یا نہیں۔ بہرحال کسی دوست نے اگر کچھ اور کہنا ہے تو ابھی بھی ہے، میں ابھی بھی ہیں، کیا نام، یہ آپ کا دیکھ رہا ہوں، میں ادھر کمنٹ پڑھ رہا ہوں، یہ زاہد صاحب بھی آئے ہوئے ہیں۔ جی جی جزا ہمارے جی، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کالر ہے ابھی کوئی؟
मोहम्मद जाहिद साहब हैं जी और बैदुल्लाह लतीफ़ साहब भी हैं, उनको ले लें पहले लेने कि आप? जी जी नहीं, कॉलर ले लें आप। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद जाहिद साहब। मोहम्मद जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी 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 वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर ये साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है मेरे भाई, फरमाएं। जी बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब। अव्वल तो डॉक्टर साहब आपने कहा कि हमारी स्ट्रीम पे ये लोग नहीं आते, तो उसकी मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा डॉक्टर साहब। एक तो अपने जो बीच में अपनी बोलने वाली आपकी आदत है वो जरा थोड़ी देर सब्र कर लीजिएगा, मेरी बात सुन लीजिएगा। एक तो आपने ये शिकवा किया यहाँ पे बैठ के कि हमारी स्ट्रीम पे नहीं आते। मेरा ख्याल है आपकी हर स्ट्रीम पे हम लोग आते हैं, आप हमारी स्ट्रीम पे नहीं आते, हम आपकी हर स्ट्रीम पे आते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आपने कहा कि जब हम हयात ईसा अलैहिस्सलाम की बात करते हैं तो ये सारे जो हैं ये छुप जाते हैं, ये सामने नहीं आते। तो मैं डॉक्टर याहिया साहब आपके इस चैनल पे बैठ के आपको कह रहा हूँ कि हमारे साथ एक मुश्तरका स्ट्रीम तय करें, 3 बंदे आपके 3 हमारे, इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू होगी और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इसके ऊपर जो है वो हामी भरेंगे। मुश्तरका हम स्ट्रीम करेंगे, 3 बंदे आपके 3 हमारे, और आपकी जो लोग नीचे जिनको आप झूठ बोल रहे हैं कि ये भाग जाते हैं वो भी सुन लें कि हम छुपते नहीं हैं। डॉक्टर याहिया साहब का तरीका ये होता है कि डॉक्टर साहब सवाल पूरा करने से पहले अगले बंदे को कॉल से उतार देते हैं ताकि वो अगला बंदा जो है वो इन्होंने जो झूठ बोले होते हैं सवाल में वो ना पकड़ ले। और दूसरी बात, ये जरीउल्लाह साहब यहाँ पे कह रहे थे कि जी अकीदा तो वफात का है, बाकी तो फुरुआत में शामिल है। तो जरीउल्लाह साहब आप ये जो पूरा चैनल अपना आपने बिठा के अपना पैनल यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं ना, ये आप हमारे अकीदे पे नहीं कर रहे हैं, ये आप फुरुआत पे कर रहे हैं। ये कहानियां वो कहानियां वो कहानियां। तो इंशाल्लाह हम करेंगे स्ट्रीम और फिर हम आपको बताएंगे कि मिर्जा साहब ने इसके ऊपर क्या क्या कहानियां घड़ रखी हैं और आपकी अपनी लिटरेचर में आपके अपने अकायद जो हैं उनमें क्या क्या तजादात हैं और क्या क्या आप लोगों ने कहानियां घड़ी हुई हैं। तो डॉक्टर साहब मुझे बताएं फिर कब आप हमें टाइम दे रहे हैं जनाब के आपने अपनी बात मुकम्मल कर ली है? आपने अपनी बात मुकम्मल कर ली है? जी मैं आगे सवाल करूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ मैं सवाल करूंगा, मुझे पता है क्योंकि आप फिर कॉल से उतार देते हैं, इसलिए मुझे जरा पहले स्ट्रीम का बता दें। मैंने कह रहा हूं आपने अपनी बात अभी तक मुकम्मल कर ली है जो आपने बात करनी थी सवाल के अलावा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सुन भी लिया कि मैं आपसे स्ट्रीम के बारे में पूछ रहा हूँ कि स्ट्रीम का मुझे बताएं। जी आप चुप करके सुने। बड़ी खुशी की बात है जनाब, आपने ये बात की, मनाजरे की, और आप यकीन करें कि आप मनाजरे की बात ना भी करते तो आज हमने, मेरी कल जरीउल्लाह भाई से ये बात हो रही थी, हमने आज मनाजरे का आखिर पे एक चैलेंज देना था। बड़ी अच्छी बात की कि आपने खुद ही बात जो है वो कर दी। हमारी तरफ से आप तमाम जो है, जो आप अपने 3 बंदे जो हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, उनको आपके अकीदा जो है हयात मसीह का, उसके ऊपर मनाजरे का चैलेंज है। लेकिन उसमें हमारी शर्त ये है, वो जो 3 बंदे आप में से होंगे उसमें से एक देवबंदी होगा, एक बरेलवी होगा और एक अहले हदीस होगा, ठीक है? और हम 3 होंगे। चलें करते हैं जनाब, बड़ा मजा आएगा और अवाम के लिए उसमें बहुत सी जो है वो, किसी भाई का माइक खुला है, अपना माइक जो है वो बंद कर ले। तो अवाम। डॉक्टर साहब एक बार मेरी बात थोड़ी सी मेरी बात इसमें शामिल होने दे। हमारी तरफ से एक देवबंदी, एक वहाबी, एक सुन्नी, आपकी तरफ से एक मिर्जा मसूर ग्रुप का, एक जुम्बा ग्रुप और एक लाहौरी ग्रुप का। अच्छा मोहतरम मेरे भाई, बात ये है कि आप, हम जो है ना, हम तीनों जो हैं, जो आपके नज़दीक जो फ़िरका हैं, हम ये दावा नहीं करते कि हमारा इजमा है इस अकीदा के मुतल्लिक और हम मिल के हमारे जो है सारे कायदे एक जैसे हैं। आप लोग अवाम के सामने ये धोखा देते हैं, और जो देवबंदी, बरेलवी और जो वहाबी हैं, कि जनाब हमारे तो इसके ऊपर इजमा है। तो इसलिए मैंने कहा, एक छोटी सी बात मैं माजरत के साथ ऐड करना चाहता हूँ, ये मोहम्मद जाहिद साहब की, ये कह रहे हैं झूठ ना बोले आपका लाहौरी ग्रुप का और जुम्बा ग्रुप। जी मैं इसी की बात, मैं इसी की, आपने बड़ी प्यारी बात की है, मैं इसी को आगे चलाता हूँ। ये कहते हैं कि जंबा ग्रुप का और लाहौरी ग्रुप का, हम यहाँ पे एलानिया तौर पे ये ऐलान करते हैं कि हम अल्लाह ताला के फजल करम से जमात अहमदी आलमगीर को हकीकी और बिल्कुल सही फिरका मानते हैं। और इसके अलावा जितने भी फिरके हैं, वो चाहे लाहौरी ग्रुप का हो, वो चाहे जंबा ग्रुप का हो, चाहे सुल्तानी ग्रुप का हो, चाहे नसीम ताहिर ग्रुप का हो, चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो, हम उसको गुमराह मानते हैं। देवबंदी जी, आप ये ऐलान करते हैं कि आपका फिरका बिल्कुल दुरुस्त है, बाकी सारों को आप गुमराह करते हैं, तो आप तीनों देवबंदी ले। मैंने आपको खुला ये ऐलान कर दिया।
तीनों हम जमाती अहमदिया के अलावा जितने भी मुखालिफ ग्रुप हैं, जितने भी, चाहे वो जमाती अहमदिया के बीच में से निकले हुए ग्रुप हैं, चाहे वो खिलाफत को नहीं मानते, चाहे वो खिलाफत के मानने के बावजूद खिलाफत से मुनहरिफ हुए हैं, हम उनको गुमराह मानते हैं। आप देवबंदी ये मान लें कि आप देवबंदियों के अलावा बाकियों को गुमराह मानते तो आप 3 देवबंदी हो जाए, या बरेलवी ये मान लें कि बरेलवी के अलावा बाकी सारों को गुमराह मानते हो तो बरेलवी आ जाए, या वहाबी, ये तीनों ऐलान करने के लिए वहाबी बिल्कुल दुरुस्त फिरका, बाकी सारों को गुमराह मानते हैं तो वहाबी आ जाए। ले जी, आ जाए आप। जी मोहम्मद जाहिद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मोहम्मद जाहिद साहब, आप मौजूद हैं? जी जी डॉक्टर साहब, मैं मौजूद हूँ, मैं आपका रोना पीटना सुन रहा हूँ, मौजूद हूँ मैं। जी, आपने वो अवाम के ऊपर आप छोड़ दें जनाब के रो पीट कर रहा है। आप ये बताएं कि आपने एक मुनाजरे का चैलेंज दिया, हमने आपका चैलेंज कबूल कर। आपकी आवाज में बहुत शोर है मोहम्मद जाहिद साहब, आपकी आवाज में बहुत ज्यादा शोर है, अगर आप ठीक कर लें तो बेहतर है। तो आपने मुनाजरे का चैलेंज दिया, हमने वो कबूल कर लिया है, और हमने आपको ये कहा है कि दो ही बातें हैं। या तो आप ये कहें कि जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे अलावा जो बाकी अगर कोई फिरके हैं तो वो जो है वो गुमराह हैं, आप या तो ऐलान कर दें कि आपके अलावा, आप अहले हदीस हैं गालिबन, आपके अलावा बरेलवी और देवबंदी जो है वो गुमराह हैं, तो हम तीनों जो है अहले हदीस के साथ मुनाजरा करने को तैयार हैं। क्या आप ऐलान करते हैं ये? जी मोहम्मद जाहिद साहब। जी डॉक्टर साहब, देखिए ये तो देखें डॉक्टर साहब, ये तो सीधा सीधा आप मुनाजरे से फरार होने वाला बहाना बना रहे हैं। यहाँ पे आपके बड़ा आप बहुत बड़ी मार बैठे हैं, और अब ये सीधा सीधा अब आप जो है वो बहाना बना रहे हैं मुनाजरे से फरार का, कि जी वो एक देवबंदी होगा, एक वहाबी होगा, एक वो होगा, एक वो होगा। देखिए डॉक्टर साहब, हर हमारे जितने भी मसलक हैं वो सारे इस बात से आपने खुद बयान कर दिया कि सबका इजमा है। तो हमारे तरफ से बरेलवी हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, जो भी हो, हमारे साथ आपने मुनाजरा करना है। 3 बंदे आपके, 3 बंदे हमारे, हमने कोई शर्त नहीं रखी थी। आप अब ये मुनाजरे से फरार के लिए एक शर्त रख रहे हैं जी, एक वहाबी होगा, एक देवबंदी होगा, एक बरेलवी होगा। तो आपका भी तो इजमा है ना मोहतरम डॉक्टर साहब, हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की वफात के ऊपर। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम उसको गुमराह मानते हैं, हम उसको गुमराह मानते हैं? लाए एक जुम्मा ग्रुप का, एक लाहौरी ग्रुप का, एक मसूर ग्रुप का 3 बंदे। अगर ये शर्त आपने हमारे ऊपर रखनी है तो यही शर्त आपके ऊपर लागू होती है, वरना 3 बंदे बताएं आप, हमारी तरफ से 3 बंदे, हम जो मर्जी डिसाइड करें। वो आप हमारे ऊपर कौन होते हैं शर्त लगाने वाले कि हम ये शर्त? जाहिद साहब दरमियान में उसकी आवाज लड़खड़ा गई है, उसको माफ कर दें, उसकी लड़खड़ा गई है, बेचारा आ गया है। जाहिद साहब, मैं आप दोबारा आपको स्क्रीन में लूंगा, लेकिन कोई बात करने की कुछ बुनियादी अखलाकियात ही सीख लें यार। मेरा मतलब एक आके शोर के साथ शुरू हो जाना और जिस तरह पता नहीं हाला करके पड़ जाना, ये कोई इखलाक मोहम्मदी नहीं है। पता नहीं कहाँ से आप लोगों को मैं अब अलग पे तो नहीं बताऊंगा इखलाक मोहम्मदी की। अब देखें प्यारे भाइयों, ये इन्होंने आके चैलेंज दिया कि जी हम मुनाजरे का चैलेंज है। वाज़े बात कर दी जरीरुल्लाह भाई ने कि भाई हम तो दूसरे को गुमराह मानते हैं। आप जब हमारी बारी आती है अहमदियों की तो आप कहते हैं कि नहीं, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी हम सारे इकट्ठे हैं। तो जब इकट्ठे हैं तो इकट्ठे होके आए जनाब, ठीक है। या फिर दूसरा, हमने तो बड़ी आराम से कहा, हम जिस तरह कह रहे हैं कि बाकी फिरके गुमराह हैं तो आप भी कहते गुमराह हैं, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो जब हमने आपको ये आपको 2 में से एक चीज सिलेक्ट करने का कहा है, तो मोहम्मद जाहिद साहब अब आपने, मैं आपको दोबारा स्ट्रीम में लेने लगा हूं, आपने 2 में से ये बताएं कौन सी चीज आपने सिलेक्ट करनी है। नंबर 1, क्या आप इस बात का बरमला आज इजहार करेंगे कि आप तीनों जो फिरके हैं, देवबंदी, वहाबी और बरेलवी, ये तीनों में से एक एक बंदा आएगा क्योंकि आपका इजमा है, आप एक दूसरे को गुमराह नहीं समझते? या नंबर 2, आप अभी ऐलान करेंगे कि आप पहले 30 के अलावा बाकी दोनों फिरकों को गुमराह समझते हैं, इसलिए फिर हम कहते हैं ठीक है जी आप तीनों अहले हदीस को ले आए। जी मोहम्मद जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम जी, दोनों में से कौन सी बात आपको पसंद है? जी डॉक्टर साहब, ये जो आपके नाजरीन है, ये वादे उन लोग पता चल रहा होगा कि आप मुनाजरे से फरार होने के लिए बहाने तलाश करना शुरू हो गए हैं। बहरहाल डॉक्टर साहब देखें, मुझे एक बात का सिर्फ मुख्तसर जवाब दे दें, आप 5 जो बंदे बैठे हैं इनमें से आप किस फिरके के खिलाफ ये प्रोग्राम कर रहे हैं? एक फिरके का नाम बता दें। जी जनाब, हम जो आपका जो है ना, जो इजमा है आपका, जिसको आप कहते हैं इजमा है आपका,
وہ جو سارے 1974 میں اکٹھے ہوئے تھے ہمارے خلاف، دیوبندی، بریلوی اور جو وہابی ہیں، سب کے خلاف، سب کے عقیدہ جو ہے اس کو ہم خلاف نہیں میں کہوں گا، ہم ان سب کے جو یہ عقیدہ حیات مسیح کا بنا بیٹھے ہیں اس کی جو اصل جو بات ہے وہ عوام تک پہنچا رہے ہیں۔ اس میں دیوبندی بھی شامل ہیں، بریلوی بھی شامل ہیں اور وہابی بھی شامل ہیں، اور اچھا کیا آپ نے یہ بات پوچھ لیا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ تینوں کو ساتھ لے کے ہم چلنا چاہتے ہیں، ہم چاہ کے، تاکہ ہم جناب آپ کے ساتھ بات کریں گے اہل حدیث میاں کے ساتھ تو وہ دیوبندی بعد میں آ کے کہہ دے گا کہ جناب مجھے تو شامل ہی نہیں کیا، میں تو اس کا نتیجے کو مانتا ہی نہیں ہوں اس مناظرے کو، ٹھیک ہے نا، اور پھر یا کوئی بریلوی آ کے کہہ دے گا یا دیوبندی آ کے جی کہہ بڑی دے گا۔ مہربانی، بڑی مہربانی سر، میں نے مختصر سوال کیا تھا سر، میں نے ڈاکٹر صاحب میں نے مختصر سوال کیا تھا، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے جواب دے دیا۔ آپ تمام فرقوں کو، جو اجماع ہے فرقوں کا، تمام فرقوں کا، ان کے خلاف پروگرام کر رہے ہیں، اس سے ثابت ہی ہوا کہ تمام فرقے جو ہیں ان کا اجماع ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی وفات کے اوپر۔ بینہ ہی اسی طرح آپ کے جتنے بھی فرقے ہیں، جنبہ ہو گیا، مسرور صاحب کا گروپ ہو گیا، اس کے علاوہ لاہوری گروپ ہو گیا، آپ کے جتنے بھی فرقے ہیں سب کا اجماع ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی وفات کے اوپر۔ تو میں بھی آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں، آپ چاہے ان کو گمراہ کہتے رہے، وہ آپ کو گمراہ کہتے ہیں، آپ ان کو گمراہ کہتے رہے، جو مرضی، یہ تو آپ کا آپس میں جو وہ چل رہا ہے، اینٹ وٹے چل رہے ہیں، وہ ساری دنیا کو پتا ہے۔ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے مناظرہ کرنا ہے یا آپ یہاں پہ چیلنج دے بیٹھے ہیں، بڑک مار بیٹھے ہیں اور آپ فرار کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، مجھے صرف یہ بتا دیں بس۔ جی چھوٹی سی گزارش، ایک منٹ مبارک بھائی، احباب پیارے بھائیو، آپ سب دیکھ لیں، ہم نے یہ ہوتا ہے کولو کولن سدیدہ، مومن جو ہے وہ سیدھی کھری بات کرتا ہے۔ ہم نے برملا کہا کہ ہم جماعت احمدیہ مسلمہ کے علاوہ باقی جو فرقے ہیں ان کو گمراہ کہتے ہیں۔ یہ محمد ظاہر صاحب، یہ ان کو اتنی ہمت نہیں ہو رہی کہ یا تو تینوں باقی سارے فرقوں کے بارے میں کہیں کہ وہ گمراہ نہیں ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہیں، یہ ان کو واقعی اس طرح کا مسلمان سمجھتے ہیں کہ گویا وہ جنت میں جا سکتے ہیں، وہ ان کی آخرت جو ہے ان کی عاقبت سنور سکتی ہے۔ چلیں ڈاکٹر صاحب ایک منٹ، مجھے صرف ایک منٹ دے دیں ڈاکٹر صاحب، یہ بات بھی، یہ اعتراض بھی آپ کا ختم۔ محمد ظاہر صاحب میری بات ختم نہیں ہوئی تھی، میں آپ کی بات میں نہیں بولا تھا۔ آپ کو اتنی کم از کم میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو پتہ نہیں کب جو ہے وہ بنیادی اخلاق آئیں گے، کب آپ سیکھیں گے کہ جو کس طرح سے بات کرتے ہیں۔ یار خدا کا خوف کریں، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا پیارے بھائیوں کہ ہم نے برملا اظہار کرتے ہیں، یہ نہ ادھر نہ ادھر، کیوں؟ یہ اگر یہاں پہ کہہ دیں کہ یہ گمراہ مانتے ہیں تو انہوں میں باہر جا کے اپنے مجاہدین ختم نبوت کو بھی شکل دکھانی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے جی، اور اگر نہ کہیں تو پھر مرتے ہیں، تینوں کو لے کے آنا پڑتا ہے۔ بہرحال مبارک بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے وہ سانپ کے منہ میں کرلی کی کہاوت تو سنی ہوگی، تو وہ کرلی ان کے منہ میں آ گئی ہے تو وہ اس کو تو کبھی قبول نہیں کریں گے، نہ چھوڑ سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس کا ثبوت کہ کون کس کے ساتھ ہے، کس کے پلیٹ فارم سے لڑتا ہے، پچھلے پروگرام میں جناب سب پورے یہاں جو سن رہے ہیں ناظرین، انہوں نے سب نے دیکھ لیا کہ طارق چوہان صاحب جو جمبا گروپ کے تھے ان کی وکالت کے لیے آپ کے محترم عامر نذیر صاحب یہاں پیش ہوئے تھے کہ میں ان کا کیس لے کے آیا ہوں۔ تو کون کس کے ساتھ ہوا جناب؟ زاہد صاحب حقائق سے آپ نظریں بے شک جتنی مرضی چرائیں لیکن بلی نہیں جائے گی، آنکھیں بند کریں لیکن بلی نہیں جائے گی۔ وہ جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے آپ اس کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی بات کسی اور طرف چلے جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے۔ بات یہ ہے کہ یہاں جو اس وقت موضوع چل رہا ہے، آپ کو کیوں جرت پیدا نہیں ہوئی، وہ کون سی وجہ ہے جو ہم نے یہاں پہ دلائل پیش کیے، جو ہم نے یہاں پہ ثبوت پیش کیے، آپ کو کون سی وجہ ہے جس نے روکا ہے کہ آپ اس پر بات کرنے کے لیے تیار تک اپنے آپ کو نہیں کر پائے اور یہاں پہ آ کے آپ نے ایک نواں شوشہ چھوڑ دیا کہ یہ ہمارا چیلنج قبول کر لیں۔ او بھائی یہ چیلنج ہی ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کے جواب دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ 4 بندے لے آئیں، 5 بندے لے آئیں، آپ اپنی ٹیم بٹھائیں اور یہاں پہ سوال کریں اور ہم آپ کا جواب دے رہے ہیں۔ لائیو پروگرام ہو رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں، وہ خود فیصلہ کریں گے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کہاں سے برہان ہے، کہاں سے دلیل ہے، کہاں سے ثبوت ہے۔ یہ فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے، یہ آپ نے نہیں کرنا۔ یہاں پہ آ کے شور ڈالنا
और मजमाबाजी करना और मदारीपन करना ये छोड़ दें। अब दुनिया बहुत समझदार है, खुदा के फजल से सब कुछ समझती है। और यहाँ पे दलाइल से अपनी बात को रखें। इसी को लाइव प्रोग्राम को ही आप मुनाजरा समझें और ये मुनाजरा ही है, इसी को चैलेंज समझें। यहाँ अपना ये मुद्दा पेश करें कि आपके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो फर्जी ईसा हैं उनको आपने 2000 साल से ऊपर बिठाया हुआ है, दुनिया बेचारी तड़प रही है, किस वक्त उन्होंने आना ये हमें बताएं आगे, और कैसे ऊपर चढ़ाया ये बताएं। शाबाश, आ जाएं। जी जी, अच्छा, जज़ाकल्लाह मुबारक भाई। अब नाजरीन सारे सुन रहे हैं। मोहम्मद जाहिद साहब, हम जैसे कि मैंने आपको कहा है, हम वैसे ही आपको ये चैलेंज देने वाले थे, इसलिए बड़ी अच्छी बात हुई कि आपने ये चैलेंज खुद ही आके बात कर ली। अब हमें आपका चैलेंज मंजूर है। सिर्फ 2 छोटी छोटी बातें हैं, या तो हमारी तरफ से 3 अल्हम्दुलिल्लाह मनाजर होंगे, 3 आपके मनाजर, उनमें से 1 देवबंदी हो, 1 बरेलवी हो और 1 जो है वो वहाबी हो, जिसको आप पहले 30 कहते हैं, ठीक है। या आप ये स्टेटमेंट दे दें कि आप बाकी फिरकों को अपने अलावा गुमराह समझते हैं, जिस तरह हमने स्टेटमेंट दे दी है, ठीक है जी, सीधी सीधी बात हो जाएगी। तो ये तो होगी जनाब आपके मनाजरे वाली बात। अब मोहम्मद जाहिद साहब, मैं आपको ऐड कर रहा हूं दोबारा, लेकिन अब आपका सिर्फ मैं सवाल लूंगा, ठीक है। अगर आप शोर करेंगे तो मैं माजरत खा हूँ, मुझे आपको इस स्ट्रीम से रिमूव करना पड़ेगा। वैसे भी हमारे 2.25 घंटे के करीब होने वाले हैं। जी मोहम्मद जाहिद साहब, आपका सवाल क्या है? मोहम्मद जाहिद साहब, आपका सवाल क्या है जनाब? जी डॉक्टर साहब, सवाल मैं करूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ 2 मिनट अगर आप दे सकते हैं तो मुझे बता दीजिए। मोहम्मद जाहिद साहब, मैंने आपको, अगर आपने मनाजरे के बारे में बात करनी थी, मैंने आपको बता दिया है। अवाम देख लेगी कि आप हमारा वो जो आपने चैलेंज दिया था वो हमने कबूल कर लिया है। आप अगली दफा हमें आके बता दीजिएगा कि आपने क्या डिसाइड किया है। उसमें जल्दी क्या है जनाब, आप भी इधर ही हैं, हम भी इधर हैं। अब अपना सवाल पेश कीजिए, जज़ाकल्लाह। जी मोहम्मद जाहिद साहब। जी मोहम्मद जाहिद साहब। डॉक्टर साहब देखें, ये बार बार डॉक्टर साहब ये हरकत ना करें, अच्छी बात नहीं है। मेरी बात सुन लें, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ, फिर आप कहते हैं आप लोग आते ही नहीं है। तो जब हम आते हैं तो फिर आप हमें बोलने नहीं देते। मैं मुनाजरे की बात जनाब आपसे करने लगा हूँ, आपका जो आखिरी एतराज है वो आपका खत्म करने लगा हूँ। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि लाहौरी ग्रुप और जुम्बा ग्रुप को आप वफात ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर गुमराह समझते हैं। आपने कहा हम उनको गुमराह समझते हैं। हमारा मौजू है हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की हयात या वफात। आप मुझे बता दें, आप उनको भी इनके ऊपर इस मौजू के ऊपर भी आप उनको गुमराह समझते हैं? अगर आप इस मौजू के ऊपर उनको गुमराह नहीं समझते और आपका उनके साथ इसके ऊपर इजमा है, तो फिर उन 2 पार्टीज को अपने साथ बिठाने से आप क्यों इनकारी हैं? ये मेरा आपसे सवाल था, ये मुझे बता दें। मुबारक साहब ने तारिक चौहान साहब की बात की थी, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मुझे कॉल से ना उतारिएगा, क्योंकि आप हमें, अगर आप दावत देते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे आने की, तो फिर हमें जवाब भी देने दिया करें। मुबारक अहमद साहब, आमिर भाई सिर्फ इसलिए आए थे कि आप जो पेशगोई मुस्लिम मऊद के ऊपर बात कर रहे थे, दावा जुम्बा साहब का भी है, दावा बशीरुद्दीन महमूद साहब का भी है, लेकिन हमारा चैलेंज है कि मिर्जा साहब की तहरीरों के मुताबिक ना तो जुम्बा साहब मुस्लिम मऊद साबित होते हैं, ना बशीरुद्दीन महमूद साहब साबित होते हैं। तो इसके ऊपर भी अगर आपने मुनाजरा करना है तो हमारे साथ मुनाजरा कर लीजिएगा। इसके ऊपर भी मैं आपको दावत दूंगा कि जुम्बा ग्रुप वालों को अपने साथ बिठा लीजिएगा, हम साबित करेंगे कि दोनों ही साबित नहीं होते, दोनों ने घड़ा हुआ है अपनी अपनी तरफ से मुस्लिम मऊद। अब डॉक्टर साहब मुझे फिर बता दीजिएगा कि ये दोनों ही गुमराह हैं आपकी नजर में? जी मोहम्मद जाहिद साहब, हमारी नज़र में दोनों गुमराह हैं, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि आप मनाजरा से मनाजरा खेलते नहीं है, मनाजरा करते हैं मेरे भाई। ये जो मनाजरे का आपने चैलेंज दिया, हमने उसका जवाब आपको दे दिया है, नाजरीन ने सुन लिया है। अब आप इंतजार करेंगे कि जिस तरह हमने बरमला खुल के कहा है कि जनाब हम दूसरों को गुमराह समझते हैं, अब आप भी आप खुद तो अहले हदीस हैं, आप देवबंदियों और बरेलवियों के बारे में हमारे प्रोग्राम में आके या तो ऐलान करें कि आप उनको गुमराह समझते हैं, इसलिए आप उनके साथ जो मिलके नहीं मुनाजरा करेंगे, आप एक ही फिरका के लोग होंगे, या 3 बंदे होंगे आपकी तरफ से, एक अहले हदीस, एक बरेलवी, एक देवबंदी। ये बात अब मैंने आखिरी दफा कर दी है। अब अपना सवाल पेश करें मुझे, वरना मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा। जी मोहम्मद जाहिद साहब, सवाल क्या? डॉक्टर साहब देखें, मुझे पता है आप रिमूव भी करेंगे, लेकिन बात यह है कि आप लोगों को धोखा मत देना। आप कह रहे हैं हम उनको गुमराह समझते हैं, लेकिन जो मौजू है मुनाजरे का जिसके ऊपर हम डिबेट करने जा रहे हैं, क्या आप
नाज़रीन आपने देखा ये ऐसी कौम है, ये खुद को मुसलमान कहती है, खुद को ये पता नहीं कहती है हम के इखलाक मोहम्मदी जो है ना कूट कूट के हमें भरा हुआ है। मैं इनको बात कर रहा हूँ कि ये बात हो गई है, अगली दफ़ा के कर लीजिएगा, सवाल पेश करें, लेकिन आप इनको देख लें, हम आखिरी चांस देते हैं प्यारे भाइयों, उसके बाद मैं इनको स्ट्रीम से रिमूव कर दूंगा। मोहम्मद जाहिद साहब आखिरी चांस है, मनाजरे की बात जो अवाम तक पहुंचनी थी पहुंच गई है, आप हमें अगली स्ट्रीम में बतलाएंगे कि आपकी तरफ से इसका क्या जवाब है, हम आपके जवाब का इंतज़ार करेंगे। मनाजरे की बात के अलावा अगर आपने सवाल करना है तो ठीक है, वरना जनाब नाजरीन वो जो है मोहतरम जो अपने जाहिद साहब वो स्ट्रीम से खुद ही जो है वो जा चुके हैं। अब चूंकि अबैदुल्लाह लतीफ़ साहब काफ़ी अरसे से इंतजार कर रहे थे, मैं उनकी तरफ चलूंगा। किसी दोस्त ने कोई बात कहनी है तो एक तो डॉक्टर साहब ये जी मोहम्मद जाहिद साहब ने जो ये बात की है ना कि आप ईसा इब्न मरियम के नजूल के बारे में क्या उनको गुमराह मानते हैं, जी मैं ये भी खुल्लम खुल्ला बयान दे देता हूँ। ले जनाब मौजूद ऐसा रिकॉर्ड करें, तारीखी तौर पर लिख लें, आप इस वीडियो को जहां मर्जी यूज कर सकते हैं। ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के नजूल के बारे में भी हम जुम्बा ग्रुप के लोगों को गुमराह मानते हैं। ले जनाब लिख लें मेरा बयान, क्योंकि आप जानते हैं डॉक्टर साहब हमारा पिछला जो प्रोग्राम था उसमें भी ये साबित किया हमने कि वो नजूल मसीह के अकीदे को फेर के घुमा के वो कहते हैं कि इसके मिज़दाक वो अब्दुल गफ्फार जंबा साहब है, तो गुमराह मानते हैं हम उनको गुमराह मानते हैं। साफ सरीन ऐलान ये इस पे भी आ गया। आप हम वो डॉक्टर कहते हैं ना कि ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ये अल्लाह ताला का फजल है कि जमाती अहमदिया एक ऐसी इनके सामने नंगी तलवार है कि ये उसके सामने बढ़ के तो मार सकते हैं, उनके सामने बुलंद दावे तो कर सकते हैं, कभी मैदान में नहीं आ सकते। हमने ये दावा किया है, हमने ये चैलेंज किया है कि हम 3 बंदे हमारे होंगे, 3 बंदों के अलावा हम दूसरों को नहीं लेंगे। क्यों? उसकी वजह बताए, क्योंकि वो गुमराह है। अगर वो कोई तहरीर ऐसी पेश कर देंगे कि अपने मुजद्दिद की तहरीर पेश करें, हम कहेंगे नहीं जी हम तो उसको मानते नहीं है, वहां पे खिचड़ी बन जाएगी। यार इनका तो आपस में इत्तेफाक नहीं है। जिस तरह डॉक्टर साहब इसने ये धोखा देने की कोशिश की है, मैं माजरत के साथ 1 मिनट लूंगा कि हमारा इजमा है, इनका इजमा नहीं है। मैं पिछले प्रोग्राम में इनकी वीडियो सुना चुका हूं। बरेलवी हजरात ये कहते हैं कि खत्म नबूवत के मुनकर देवबंदी हैं। डॉक्टर साहब मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, उस वीडियो में बरेलवी आलिम ने ये कहा कि खत्म नबूवत के मुनकर देवबंदी हैं। उसके नीचे हकीम राशिद जो स्टीम में आया हुआ था देवबंदी है, यहाँ पे मौजूद भी है, आपने उसको मुखातिब भी किया कि मैदान में आओ, लेकिन वो नहीं आया। उसके के नीचे उसने ये बात बयान की कि बरेलवी मुफ्ती साफ और सही झूठ बोल रहा है, और ये वैसे ही, और उसने बरेलवी मुफ्ती को गंदी गालियां निकाली। डॉक्टर मेरे पास वीडियो मौजूद है। इनका आपस में इत्तेफाक ही नहीं है, ये आपस में एक दूसरे को मुसलमान नहीं मानते, और उनको पता है कि हम तीनों इकट्ठे जाएंगे तो बड़ी बुरी तरह फंस जाएंगे, कादियानी में सांस नहीं करने देंगे। जी डॉक्टर साहब मेरी बात खत्म है, अबैदुल्लाह लतीफ का कॉल पे जी जज़ाकल्लाह। जी अबैदुल्लाह लतीफ साहब, अबैदुल्लाह लतीफ साहब आप मेरे से बात कर रहे हैं या किसी और से बात कर रहे हैं? मुझे लगता है अबैदुल्लाह लतीफ साहब जो हैं उनकी फोन में गड़बड़ है। मुजम्मल हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आपको मेरी आवाज आ रही है? वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।